السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین لکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر رکھیں، اجیت اجر بن جائے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ مجھے جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ ناممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ ہم سمندر کی طرح چپ ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے، اور بات جب مقافت عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبعوث ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ پاک کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ جس شخص کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ زندگی کی کتاب کے سب راگ ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کامل رکھیں۔ سکون کے ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید، یقین۔ تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخرکار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے۔ بندے کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ صبر، خاموشی اور لا تعلق بہترین انتقام ہے۔ صبر کرنا، قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشت نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ صبر رکھو، خوشیاں نہیں ٹھہریں تو غم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے جد کر رہی ہوں، سو بہتر ہے صبر کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں
बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती है। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो अल्लाह पाक से बातें करो, खुश हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, मुश्किल में हो अल्लाह पाक से मदद मांगो, डिप्रेशन में हो अल्लाह पाक के सामने रो दिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेशक रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। सीखो, परखने से पहले समझो और दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रही, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती ही जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ न पकड़ सके वहां लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गमों से परेशान ना हुआ करो तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करती हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे वसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदाजी करें, और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और की ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती है। जब ठोकर खाकर भी न गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों?
کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ صبر کرنا، درگزار کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ پاک کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں۔ وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پاک پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہان میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نہ، زندگی کے ہر راہ پر صبر کچھ دل کرے تو صبر کہیں جانا ہو، تو صبر کچھ کھانا ہو، تو صبر کچھ من پسند چیز لینی ہو، تو صبر کسی نے بے عزتی کر دی، تو صبر کوئی دل کے بہت قریبی رشتے ٹوٹ گئے، تو صبر ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا واسطہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تم ہمیشہ اپنی ذات اللہ پاک کو پاؤ گے، اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے ہر شخص میں توق نہیں ہوتا، اور جب توق نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ پاک کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ پاک سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہت جلد اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ پاک تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدل دے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں قرآن میں آتا ہے۔ درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین کرو اب تک جو ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک کو تم بہت عزیز ہو، اوپر دیکھو ایسا لگے گا
वो तुम्हें देख कर मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ है। बस अनकरीब वो कुछ ऐसा करेगा कि तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस आ जाएंगी। दिल ऐसे ही नहीं टूट जाते, बदले में अल्लाह पाक की मोहब्बत मिलती है। अल्लाह पाक तो फरमाता है, माँ अपने बच्चों की एक सिसकी नहीं सुन पाती और मैं तो तुमसे 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात को मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत की अहमियत जान पाते। वो फरमाता है, तुमसे किसने कह दिया मैं बेखबर हूँ तुमसे, मैं तो तुम्हारा आसमान की जानिब मुंह फेर फेर कर देखता हूँ। वो फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जाकर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह पाक की मदद करीब है। एक वही तो है जो साथ होता है, दूर तो हम चले जाते हैं, वो तो हमारे करीब होता है, हमारे सहरग से ज्यादा करीब। इतना करीब भला कोई और हो सकता है। वो कभी भी तुमसे बेजार नहीं होगा, चाहे तुम अपनी एक ही बात को लाख मर्तबा ही क्यों न दोहराओ। वो हर बार उतनी तवज्जो और मोहब्बत से सुनता है जैसे पहली बार सुनता है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, कह दो उसे सुना दो अपनी दास्तां। अरे वो तो सब जानता है लेकिन फिर भी तुम्हें सुनना चाहता है। तो जाओ, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो। अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे तो अब तुम्हें वो मिलेगा जो अल्लाह पाक चाहता है। अल्लाह पाक ने तुमसे कुछ लिया है तो यकीन रखो, इंतजार करो उस वक्त का जो तुम्हें उससे बढ़कर देगा जो तुमने खो दिया है। अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ से तब तक गुलाब का फूल नहीं लेता जब तक वो तुम्हारे दूसरे हाथ में गुलाब से भरा हुआ सजा हुआ गुलदस्ता नहीं थमा देता। तो सब्र करो हर उस चीज के लिए जो अल्लाह पाक ने तुमसे ले ली है, और इंतजार करो हर उस चीज के लिए जो वो तुम्हें अब देना चाहता है, क्योंकि जो अल्लाह पाक जानता है वो तुम नहीं जानते, और जो तुम जानते हो वो बहुत महदूद सा है। लेकिन पर्दे के उस पार की हकीकत तो सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। तुम्हें अभी भले ही ना लगता हो, लेकिन अल्लाह पाक के पास तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। अभी शायद यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो तुम्हारे सब्र का अजर ही तुम्हें खुद ब खुद वैसा ही देगा जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया था। दुआ कैसी भी हो किसी सूरत रद्द नहीं होती, और सब्र जैसा भी हो हमेशा बाजी ले जाता है। तो फिर क्यों हो मायूस, किस चीज की फिक्र। अल्लाह पाक भी तो बार बार कुरान में कहता है, ऐ मोमिन दुआ और सब्र से अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करो। तो तुम भी इंतजार करो कि वो कब मदद भेजता है, क्योंकि तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस एक काम कर लो, जो अल्लाह पाक ने दिया है उस पर राजी हो जाओ, और जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए सब्र कर लो। तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हें मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से है खुशखबरी। क्यों तुम नहीं समझते कि गुजर जाएंगी यह मुश्किल घड़ी। तुम नाराज ना हो अल्लाह पाक से, तुम तो महबूब बंदे हो उसके, वो तो नवाजना चाह रहा है तुमको हर गुनाह से करके बरी। जो चीज जितनी नामुमकिन होती है वो उतनी ही मुमकिन भी होती है, लेकिन कौन जाने हम जरा सी देर देख लें तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की जरूरत है, फिर तुम देखोगे इस देर के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हें अदा कर दिया जाएगा। और अल्लाह पाक खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाता है। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो कि उसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है। जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है
वो उसे फिर कैसे रद्द कर दे सकता है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दुआओं से फौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती है और फिर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। कुछ तो बात है जो तुम्हारा दिल एक ही दुआ पर रुका हुआ है, कुछ तो बात है जो तुम यूं सब्र करते जा रहे हो, कुछ तो खास रखा है अल्लाह पाक ने जो तुम तहज्जुद की नमाज तक जा पहुंचे हो। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ उस पर आंख बंद करके यकीन रखने की है, वही है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं। अल्लाह पाक जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी देता है। फिर यह फिक्र कैसी, अल्लाह पाक पर यकीन रखो, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी हर दुआ कबूल होती नजर आएगी। जो रास्ते अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए चुन लेता है बस वही रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। इस रास्ते पर आंख बंद करके चलना शुरू कर दो। किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ लाजिम है। तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए अता का समंदर है। तुम्हारे एहजब के आंसू का एक कतरा उस रब की रहमत के समंदर में शोर मचा देता है और उस चीज को भी खींच ले आता है जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होती। क्योंकि जिन रास्तों का सफर तकलीफ दे हो उसका ताम हमेशा हसीन हुआ करता है। और अल्लाह पाक फरमाता है अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें फेर देगा उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। बस यही रब पर यकीन की आखिरी हद है कि सब उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। एक दिन देखना तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह पाक ने मोजिजा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफर करते करते थक चुका था अब वो इत्मीनान में होगा। और फिर दुआ मांगना तुम कभी भी मत छोड़ना और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाब तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा बिन कुछ कहे वो सब समझ जाए तो क्या करोगे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहाँ तुम आज हो वहां तक पहुँचने के लिए उस तकलीफ से गुजरना कितना जरूरी था जिससे तुम सजा समझा करते थे। क्योंकि बेशक के बाद अल्लाह पाक ऐसा सुकून दे देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन और उनमें मौजूद हर चीज बना डाली। तुम्हें लगता है कि उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल के बाद तुम्हारे लिए आसाइश ही आसाइश है। और अल्लाह को तुम्हारा तबक और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वो चाहता है कि कुछ देर और तुम इस यकीन के साथ उससे मांगो और यह नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह पाक भी तुम्हें नामुमकिन जरियों से नवाजता है।
हर मुमकिन वजह देगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह पाक का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें यह नहीं भूलना कि अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों को हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह पाक के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मोजिज़े तवक्कुल करने वालों के लिए होते हैं। सब्र बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। मोजिज़े तब ही होते हैं जब अल्लाह पाक से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद यह तुम्हारे नसीब में ही नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब मिटा भी सकता है, दोबारा बना भी सकता है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह पाक तो जब चाहे जो चाहे सब कर सकता है। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह उदास होने लगे तो जान लेना अल्लाह पाक तुम्हें याद कर रहा है। सजदों में बहते हुए आंसू ही अल्लाह पाक को तुम्हारे सब्र की गवाही देंगे और फिर कुन के मोजिज़े हो जाएंगे। जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें देखकर तुम कहोगे, या अल्लाह पाक, इन्हें तो मैं भूल चुकी थी। और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, मैं नहीं भूला और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। पता है सबसे हैरान वाली बात क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जब हम भूल जाते हैं, जिन्हें हम मजीद मांगते नहीं हैं और हमें लगता है कि अब वो कभी कबूल नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह पाक कभी कभी कुछ भी नहीं भूलता। हम ही मांग कर थक जाते हैं और फिर उन दुआओं को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को सब याद होता है कि तुमने फला जगह बैठकर फला काम करते हुए फला चीजें अल्लाह पाक से मांगी थी। फिर वो तुम्हारी उन माजी की दुआओं को तुम्हारे हाल की दुआओं की कबूलियत का वसीला बना देता है और तुम्हें नवाज देता है। तो अगर कभी जिंदगी में गिरते गिरते संभल जाओ, या अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था, तो याद रखना यह तुम्हारी उन्हीं दुआओं का सिला है जो तुमने कभी अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाकर मांगा करते थे। दुआएं और आखिरी सांस तक तुम्हारे काम आती हैं। कभी बलाओं को टालकर, कभी बिछड़े हुए का किसी का साथी से मिलवाकर, कभी रोते हुए आंखों को हंसाकर, तो कभी रूह को बेसुकून बेवजह सुकून से भरकर, कभी दिल बदलकर, तो कभी नसीब पलटकर। जो तुम्हारे तरीके से पूरी नहीं हो पाती, वो दुआएं फिर अल्लाह पाक के तरीके से पूरी होती हैं, जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं। यह वादा है तुमसे अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताक़ी जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं, न तुम्हारी दुआओं को न अपने वादों को। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं से कभी भी बेजार नहीं होता। अल्लाह पाक को तो तुम्हारी दुआओं का इंतजार रहता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब उसका बंदा थक कर उसके दर पर बैठ जाता है। एक दो दफा मांग कर मायूस पलट जाने वालों के लिए अल्लाह पाक कुन नहीं फरमाता। अल्लाह पाक उनके लिए कुन फरमाता है जो उसे आखिर तक मनाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनके लिए मदद भेजता है जो उसके दर पर बार बार जाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल करता है जो देरी के बाद भी राब्ता बहाल रखते हैं। अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए अल्लाह पाक को उसके मनपसंद अंदाज में राजी करना पड़ता है, और सभी इबादतों में से उसकी पसंदीदा इबादत दुआ है। तो फिर उसके दहलीज पर चक्कर लगाते रहा करो, क्योंकि अल्लाह पाक मजीद उन्हीं के लिए करता है जो उसके दरवाजे पर दस्तक देना नहीं छोड़ते। मुश्किल होता है जब इसी भरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी न हो जिसको आँख खुलकर बता सके कि जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह पाक तो है ना, और हमारा अल्लाह पाक से बेहतर कोई और दोस्त नहीं हो सकता जो हमारी हर अजियत को जानता है, लेकिन फिर भी हमारी दुख भरी बातें सुनता है और फिर हमें उसका जवाब भी देता है। कभी कुरान पाक में किसी आयत से, कभी किसी स्टेटस के जरिए, तो कभी किसी फेसबुक पर किसी पोस्ट के जरिए, कभी किसी इंसान के जरिए जो हमारी नजरों के सामने हमारे जवाब अचानक से मिलते हैं, ऐसे ही सामने नहीं आ जाते। यह तो हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से जवाब होते हैं, और इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। अल्लाह पाक हमें सुनता है। वो अल्लाह पाक जो खालिक कुदरत है, जिस पर ये खूबसूरत दुनिया बनाई और बेशक
वो इस दुनिया का मालिक है, तो सोचिए वो इतनी बड़ी दुनिया का मालिक होकर हम सबकी सुनता है, तो हमें भी चाहिए हम उसकी सुने। वो हमारे लिए जो भी फैसला करता है, यकीन वो हमारे लिए बेहतर होता है, तो फिर सौंप दो खुद को रब के हवाले। वो जो भी करेगा बेहतरीन करेगा। अल्लाह की रजा को अपनी रजा बना दो, फिर वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारी रजा होगी। बस उसके रंग में रंग जाओ, फिर तुम्हें दुनिया के रंग पसंद नहीं आएंगे। सब्र का घूंट कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन उसके बाद कितनी आसानियां हैं तुम यह सोच भी नहीं सकते। सब्र करना बहुत मुश्किल है, पर जब सब्र आ जाता है तब बड़े से बड़ा नुकसान भी नुकसान नहीं लगता, कोई मुश्किल नहीं लगती। और तब तुम सिर्फ ये कहते हो कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलियत होगी। मुझे अल्लाह के लिए सब्र करना है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो सब सही कर देगा। इसलिए खुद को रब की रजा में राजी रखो और राजी होने की कोशिश करो। अपने आप को समझाओ, अपने दिल को कहो जिद ना करे। मुकद्दर लिखने वाले से जिद नहीं करते, उसका फैसला तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा बेहतरीन है। वो मेरी जात से नावाकिफ नहीं है, वो जानता है कौन सा दुख मैंने आंसुओं में बहा दिया और कौन से दुख को खुद में जब्त कर लिया। उसने देखा है मेरे दिल का हजारों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना, वो भूला नहीं है मेरे बच्चों की माने पलट कर रोने को यकीन सा हो चला है। मेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, मेरे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तो बस यकीन के मोजिज़े दिखाए जाएंगे ताकि हम जान सकें मखनी दिल दाम में हमेशा जीत जाता है। अल्लाह के सिवा और कौन है जो हमारा दोस्त है? कोई नहीं। इंसान कभी तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। रब और उसके बंदे के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। इंसान की दोस्ती भी एक दिन टूट जाती है, मान तोड़ देती है, इंसान खफा हो जाता है, लेकिन अल्लाह से दोस्ती कभी भी नहीं टूटती। वो अपने बंदे का मान कभी भी नहीं तोड़ता, वो खफा नहीं होता। वो तो ऐसा है तुम उसके पास एक कदम बढ़ाओ तो वो 4 कदम बढ़ाएगा। हाँ, क्योंकि इंसान रब नहीं है। इंसान आपको कभी नहीं समझ सकता, वो सिर्फ अपने जर्फ के मुताबिक आपको जानता है। फिर भी इंसान कभी दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता। अगर इंसान खुद को अगले इंसान की जगह पर रखकर समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं समझता। जब खुद अल्लाह ने फरमाया है मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ, इंसानों से उम्मीद लगाओगे तो बिखर जाओगे। इंसान कभी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। तुम वही उम्मीदें अपने पैदा करने वाले से लगाओ, वो तुम्हारा मान तुम्हारी उम्मीद कभी नहीं तोड़ेगा। इंसानों से रिश्ते भी अल्लाह ने हमें दिए हैं निभाने के लिए, समझने के लिए, मगर उनसे कभी कुछ एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि उम्मीदों के प्याले रब के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। जब वो तुम्हें गम की गहराई में ले जाता है, फिर सब्र और यकीन के साथ वापस भी तो आता है। तुम्हारे बिखरे हुए वजूद को उस पर यकीन की ताकत देता है, वापस समेट भी लेता है। सब्र आसान नहीं होता, लेकिन हालात को समझते हुए सब्र ही हमारा आखिरी हल होता है। प्यारे नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल सामी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।